viewers, good evening. You're watching India Upfront. Imagine being asked, what's your caste? How would you react? You'd either reveal your caste or object to the question. But what if you had been asking others about their caste? Would you still object? This paradox, viewers, is playing out in Parliament, exposing the hypocrisy of the Congress and the Samajwadi Party. These parties have been at the forefront of asking people their caste, yet cry foul when asked the same question. They've been demanding a caste census, but when Anurag Thakur dropped the caste question, they called it an insult, claimed breach of privilege. This selective outrage, viewers, reeks of hypocrisy. There's no other way of describing this. Their reaction exposes a glaring double standard. They want to collect caste data for political advantage, but object when asked about their own caste. This duplicity undermines their social justice credentials. How can they claim to champion equality while perpetuating caste divisions? Just think about it, viewers. The caste controversy is a mirror held to the face of these parties. Will they acknowledge their hypocrisy and engage in genuine social justice dialogue, or continue exploiting caste for political gains? The caste question has become a litmus test for political integrity. Those who object to the question while asking it themselves stand exposed. It's time for Congress and the Samajwadi Party and perhaps all the others to confront their own hypocrisy and work towards true social equality. जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी हैं? कितने ओबीसी हैं? क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकते हैं? लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, काहे भाषण दे रहे हैं भाई सदन में? जहां आपकी सरकार एक करिए, हिमाचल में करिए, तेलंगाना में करिए, पंजाब में करिए, बंगाल में करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? और कर्नाटक में तो किया हुआ रखा है, जातिगत सर्वे किया हुआ रखा, ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने धमकी दे रखी है, अगर जारी करने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा। आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक, everybody has opposed reservation for OBC. It is unfortunate that the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, praises a speech which insulted the rights of Dalit, OBC and Adivasis. Dalit, OBC and Adivasis of India want a caste census. And like Rahul Gandhi ji says, we will fight for their justice, we will fight for their respect, and we will fight for their right to have a caste census. Let's open this up, viewers. Aparajita Sarangi, Member of Parliament, National Spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Dr. Naval Kishore, National Spokesperson of the Rashtriya Janata Dal. IP Singh ji, National Spokesperson of the Samajwadi Party. Lokesh Jindal, Political Analyst. And we have Karan Verma and Tushar Gupta, two of India's foremost political analysts, on the show together. Doesn't happen too often that both of them are on one show. But here we have them. I want to begin by asking Lokesh Jindal one simple question. Lokesh, when Anurag Thakur said what he said, Rahul Gandhi said, you can abuse me. He didn't say that, आप मेरा जाति क्यों पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, because perhaps Rahul knew कि वो खुद पूछ चुके हैं पहले. But Akhilesh Yadav jumped in. And ever since, the Congress has been riding on that wave. What is wrong in what Anurag Thakur said? Pradesh, it was absolutely wrong to comment on somebody's identity. To comment that a person does not have a jati, to comment that a person is outcast, to comment in such a manner on the floor of the parliament as a person who is
looked upon as a person who is belong to the ruling party is disparaging, shameful, and he must apologize unconditionally. In fact, I was expecting the speaker to take a stern action. The ethics committee, the privilege motion must be moved, because this is not the manner in which a parliamentarian is supposed to comment upon the other fellow parliamentarian. And secondly, when you're talking about caste, yes, the caste as a means to classify a community is very well acknowledged by the Supreme Court itself. On the floor of the parliament, you have all the right to discuss this social institution, but not to give loose comments on it. So what the comment that Mr. Lokesh, Anurag what was Thakur loose about made, the comment? when Mr. Anurag Thakur says कि जिसको उसकी जाति का मालूम नहीं वो गणना की बात करता है, जिसकी खुद की जाति नहीं वो गणना की बात करता है, तो this remark is an insult. Okay, this is an upon insult. A fellow parliamentarian. Okay, उन्होंने वैसे नाम नहीं लिया था, बट ठीक है, इट्स एन इंसल्ट, मान लेते हैं इट्स एन इंसल्ट. आईपी सिंह जी, जब अनुराग ठाकुर ने जो कहा और अखिलेश यादव ने कहा जाति कैसे पूछ ली, कैसे पूछ सकते हैं आप जाति, क्या वो इंसल्ट है? देखिए, सामाजिक न्याय की बीजेपी दुश्मन है. नेता सदन में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे नेता थे अपोजिशन के, और उन्होंने कहा कि अगर जातिगत जनगणना 2010 की बात मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा अगर जातिगत जनगणना देश में नहीं होती है तो जो पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित है वो काफी पिछड़ जाएगा. दूसरा वाक्य आपको बताता हूं, जब नहीं, ये वाक्य मुझे पता है आईपी सिंह जी, मैंने जो आपको सवाल पूछा पहले आप उसका जवाब दे दीजिए. सबसे पहले जो क्या आपको लगता है किसी को जाति पूछना, किसी का जाति पूछना इंसल्ट है, अमर्यादित बयान है? भाई, आप जो देश की 85% आबादी है, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, आप उनको जाति के नाम से पुकार कर आप उनको अपमानित करते हैं. अच्छा, माननीय अखिलेश जी, यही बीजेपी के लोग, यही आरएसएस के लोग, वो मंदिर में जब गए तो मंदिर को गंगा जल से धुला गया. वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे. जब 2017 में उन्होंने सरकारी आवास छोड़ा तो दूध और गंगा जल से पूरे आवास को धुला गया. नहीं, आपको ये सब दूध, गंगा जल, सरकारी आवास छोड़ा, ये सब याद है, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने पहले क्या कहा वो भूल गए आप. हम आपको याद दिलाते हैं. लोकेश जिंदल और आईपी सिंह जी, आप ध्यान से सुनिए. आईपी सिंह जी, ठीक है, अभी शो बचा हुआ है, आईपी सिंह जी, अभी मैं आऊंगा आपके पास. अब आप सुनिए क्या कहा है राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने जाति पे. लेट्स प्ले दैट आउट. दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा. नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं. तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं. आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ. ओए, मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है. नाम बताओ उसका. वो ओबीसी है? नहीं, वो दलित है? छोड़ो अपना कैमरा, कहीं और ले जाओ. चलो, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ. हाँ, मिश्रा जी. अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो. अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो. अब मिश्रा जी तो है नहीं, शर्म करेंगे. आईपी सिंह जी, अब मैं आप ही से पूछ लेता हूं. अब ये जो आपने दोनों बयान सुने, राहुल गांधी मजा दिला रहे हैं, अखिलेश यादव जात पूछ रहे हैं कि
शर्म करो, ये अपमान कर रहे थे लोगों का। देखिए, ये बाध्यता तो मोदी जी से पूछिए ना कि जब वो वैश्य कुल में पैदा हुए तो मुख्यमंत्री बनते ही अपनी जाति को क्यों पिछड़ों में शामिल कर दिया। आप किसी गांव में, मैं गांव में बसता हूं, मेरा जीवन गांव में, मैंने खेती बाड़ी अपने हाथों। अरे क्या सवाल पूछा मैंने आईपी सिंह जी, देखिए आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह दीजिए कि मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे लीडर ने मुझे एम्बैरेस कर दिया है, आपके पास जवाब नहीं है। लोकेश जिंदल, डू यू वांट टू ट्राई? हाउ इज दिस इंसल्टिंग? यू आर सेइंग व्हाट अनुराग ठाकुर said was insulting. Pranesh, first of all, when you talk about OBC, it's a section of population which is socially and educationally backward. So when I'm talking about this definition of OBC, I am not interested in definition. I am asking you on the basis of the reactions that you just heard. Was this demeaning, insulting? What was it? Now, Pranesh, these reactions that you have shown were a selective clip. Oh, selective clip. Which was meant to depict a particular Come on, picture. Lokesh Jindal. So Okay. what I would say, see, Okay, Pranesh, let's I open would this up now. clearly Okay, say it's okay. It's okay. You that tried hard. any It's form okay. of It can happen. discrimination Tushar towards any caste. Gupta, what's going on here? 2 points I'll make, Pranesh. You played out a very important video, which is perhaps forgotten from public memory, where Rahul Gandhi in a rally asked a journalist, what are you? Are you an OBC and SC? And then he requests the people to not harm him. Now, my worry is if you're going to take this message of caste census across the country, is there a possibility of social unrest being caused? Has the Congress factored this in? And number two, Pranesh, the Congress has this obsession with caste census, not because they think about social justice. No, they do not. They know that the freebie model they are embarking on would be pretty much dead by 2029. The people will see through the sham as they're seeing in Karnataka right now. Their far nefarious plan is to introduce private sector reservations. Mark my words today, Pranesh, I'm saying it on your show in 24, on July 31st, Congress will make a case for private sector reservations using the caste census before the next general elections. That is their long-term agenda, and we saw a hint of it in the Nyaya Patra of the Congress in 2029. What else is the reason for Rahul Gandhi to get so worked up if someone is asking his caste? Look at the irony, Pranesh. Last week, the same people were saying, अरे आप उन दुकानदारों को अपना नाम लिखने को क्यों कह रहे हैं बोर्ड्स पे? आप उनका नाम क्यों जानना चाहते हैं? आज इनको पूरे देश की कास्ट जाननी है। एक हफ्ता ये नाम नहीं बताएंगे, दूसरे हफ्ते ये आपकी जाति पूछेंगे, हिंदुओं को बांटेंगे, पर लॉन्ग टर्म में they'll make a case for private sector reservations, Pranesh, and it will decimate our economy. Okay. डॉक्टर नवल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया अब कास्ट के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है? नहीं, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। देखिए, जातीय जनगणना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक उपचार है, और एवरीबॉडी नो दिस। और जहां तक जाति पूछने का सवाल है, जाति पूछने से किसी को दिक्कत नहीं है। जाति तो इस देश की सच्चाई है। समस्या है जो जातिगत गैर बराबरी है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। नहीं, आप कह रहे हैं जाति पूछने से दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव को है, राहुल गांधी को है, लोकेश जिंदल को है, आईपी सिंह को है। माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन आपके इस सवाल में मुझे यहां आपको रोकना पड़ा क्योंकि आप कुछ और कह रहे हैं और आपके सहयोगी कुछ और कह रहे हैं। नहीं, वो आप सुनेंगे तब समझ पाएंगे। जब अखिलेश जी बोल रहे हैं और जब अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं, दूसरे में दोनों में डिफरेंस है। जब अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं तो उसमें कमेंट का भावना है। आप कह रहे हैं कि those who are asking for caste census do not know their caste। क्या ये कमेंट नहीं है? क्या ये अब्यूज नहीं है? कास्ट जिसकी गिनती हम चाहते हैं, या राहुल जी बोलते हैं या अखिलेश जी बोलते हैं, वो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को समझने के लिए जो तरीका है उसके विषय में बात की जाती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जो पुराने बयान हैं जो मैंने चलाए, जी मैं समझ गया डॉक्टर नवल किशोर जी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल गांधी जी के जो पुराने बयान हमने चलाए उसमें वो सम्मान देना चाह रहे थे जाति पूछ के, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो कह दिया उससे वो टॉन्ट कर रहे थे, वो टीका टिप्पणी कर रहे। करण वर्मा, करण, will you take this logic?
हाँ नहीं आप सुन लीजिए जब आ रहा हूँ नवल किशोर जी, एक एक करके जवाब तो सुन लीजिए इसका। नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। नवल किशोर जी प्लीज बोलने दीजिए अरे भाई। ऐसे ही सवाल पूछने का क्या मतलब है? नहीं मैं बात सुनने आ रहा हूँ दीजिए आपके पास, वापस आ रहा हूँ। अरे ऐसे बिना सोचे क्या तरीका है मैं बता रहा हूँ ना। नहीं आप बताइए, आपने तो बता दिया कि वो मजाक था। अब प्रणय जो नवल किशोर जी, नवल किशोर जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूछने में आसानी होगी। यस सर, अरे दो फेडर्स डाउन 1%। अरे भाई चुप हो जाइए भाई, दूसरे को भी सुन लीजिए। या नो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणेश, व्हाट डिड अखिलेश यादव से आपने जाति पूछ कैसे ली? मतलब हम सबकी पूछेंगे, अपनी नहीं बताएंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे। अरे मिश्रा जी आपको शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे मालिक की क्या कास्ट है? लुक एट द लैंग्वेज, मालिक की क्या कास्ट है? सो दे कैन रिजॉर्ट टू दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। दे आर अगेंस्ट, एज तुषार सेड, हम अपना नाम भी नहीं बताएंगे, कागज भी नहीं दिखाएंगे, पर आपकी जात घर घर जाके वी आर गोइंग टू डू अ सर्वे एंड वी आर गोइंग टू डू द सर्वे एंड देन नॉट इवन मेक इट पब्लिक लाइक इन Karnataka. They've done the caste census, but because the deputy CM has a problem and their caste equation in Karnataka is going to get disturbed, so they are not going to make it public. Anyways, Pranesh, the hypocrisy here is unbelievable. It is the Congress party, जिसको कहते हैं ना गैंग्स ऑफ वसईपुर में, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल. So let's just put our minds to what was Pandit Nehru's statement in 27th June 1961. Pandit Nehru says, I dislike reservation. It gives rise to second grade citizens. He is called Indian second grade. What did Indira Gandhi do? For 10 years, she sat on the Mandal Commission report and said, na jaat pe, na paat pe, mohar lagao haath pe. What did Rajiv Gandhi do on 6 September 1990 on the floor of the House? He said, the poison of casteism is going to take back our country. I am going to stay away from it. बताइए, इस कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है एंड दे टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, दे टॉक अबाउट कास्ट. तो थोड़ा सा तो आपको आज घोषित कर देना चाहिए, मेक द कास्ट सेंसस ऑफ कर्नाटका पब्लिक. Can you do this today? May break the alliance with Rahul Gandhi. If he doesn't, we will put that to Karan Verma. लेकिन नवल किशोर जी कुछ बोलना चाहते हैं. जी नवल किशोर जी. देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा हिपोक्रेट होते हैं वो हिपोक्रेसी की बात करते हैं. आपको ये मालूम ही नहीं है कि भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी मंडल कमीशन के जब लागू हुआ तो, और कमंडल रथ यात्रा लेकर निकली थी. ये आपको नहीं मालूम है क्या? हिपोक्रेसी ये है की बात करिए ना. 2010 में कांग्रेस 10 years let him speak please, one person at a time. Karan, let him speak. कांग्रेस को 10 साल तक 1980 से 1990 वही बात. अरे सुन लीजिए कांग्रेस, सुन ले. What 10 years Congress? No, faders down, please. Let him speak. अरे सुनो तो, अरे जवाब सुनोगे तब तो पता चलेगा. अरे हाँ, मैं तो बता रहा हूं आपको कि वही कांग्रेस यूपीए 1 में दलितों पिछड़ों को यूनिवर्सिटी कैंपस में जगह दिया. 27% बिल. आपको मालूम है कि नहीं? जब कांग्रेस को आप देखते हैं तो आप देखिए कितना परिवर्तन है. जो कांग्रेस जरूर विरोध किया उसने 89 में, लेकिन आज के डेट में कांग्रेस उसका समर्थन करे. आप तो समर्थन कर रहे थे 2010 में, आप विरोध में कैसे चल गए? मोदी जी कैसे बोलते हैं कि देश में जाति ही नहीं है? जब कास्ट सेंसस की बात होती है तो कहते हैं कि देश में जाति ही नहीं है. नवल किशोर जी, वो तो सवाल ही नहीं है, वो सवाल नहीं है, वो सवाल नहीं है. आप सवाल पे देखिए, आप मिसलीड कर रहे हैं और ये चलेगा नहीं. ये डिफ्लेक्शन और नहीं, ये सवाल नहीं है. मैं आपको बताता हूं सवाल क्या है. लोकेश जिंदल, डू यू वांट टू 1 minute? नवल किशोर जी, वो सवाल नहीं है. सवाल ये है कि अगर आप कास्ट सेंसस चाहते हैं, आप दुनिया भर घूम के लोगों को कास्ट पूछ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है अगर अनुराग ठाकुर ने ये बोल दिया तो? एंड लोकेश जिंदल, आई हैव दिस प्रिविलेज मोशन. मिस्टर Channi has written to the Lok Sabha speaker notice to move a privilege motion under rule 222 of the rules of procedure against the prime minister. Now Lokesh, the remarks that the prime minister tweeted or the remarks on which there is outrage, can we have Lokesh on screen? Lokesh, those remarks have not been expunged. They are endorsed so how by is the this Prime privilege Minister. valid? No, because Pranesh, such a form of a comment, unparliamentary, which is demeaning a fellow parliamentarian, was endorsed by the Prime Minister. In fact,
No, no. It is adding an insult to Which injury. fellow parliamentarian was demeaned? You tell me. Take names. Pranesh, if it was a comment that was made upon the general public at large, or if this was a comment which was specific towards a particular section, then Mr. Anurag Thakur needs to give an explanation why he made this comment and on whom No, he you made this ask him the explanation. The Congress No, party, the Pranesh, allies of Team because- India must ask him that question. You are making Pranesh. it about Rahul Gandhi. The truth is, he did not even name Rahul Gandhi. Did he? Pranesh, no. That's you cannot give him the benefit of doubt because the entire floor knew what that entire debate was all about and in what context he made this statement. And I don't think that all parliamentarians Lokesh, are so I am naive willing that to they go don't into understand. context. Let us discuss the context of Rahul Gandhi's comments, of what Akhilesh Yadav said. Mishra ji, sharam to kijiye. Because someone is Mishra, तो उनको शर्म आनी चाहिए. What is the context? Pranesh. IP Singh ji, बता दीजिए context. देखिए प्रणेश जी, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य जो छत्री हैं उन्हें ठाकुर भी कहते हैं. ब्राह्मण किसी भी मंदिर में, किसी भी स्थान में जो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो कहीं भी जा सकता है. वो मंदिरों में वही पूजा पाठ कराएगा. वो कर्मकांड घाट पर जो होंगे, शमशान घाट पर कर्मकांड वही ब्राह्मण कराएगा, वही मिश्रा जी कराएंगे. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने की कोशिश करिए. लेकिन स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मंडल कमीशन लेकर आए तो उन्हें पिछड़ा वर्ग उन्हें भगवान की तरह पूजता है. उनके साथ आज किस तरह की बीजेपी ने बर्ताव किया, किस तरह से उनकी सरकार गिरा दी गई, कब कमंडल कब शुरू हुआ, ये सब हम सब ने यूनिवर्सिटी लाइफ में रहते हुए देखा है. तो बीजेपी बचना चाहती है. जो जनगणना है, जो जातिगत जनगणना है, जिसे सामाजिक न्याय मिलेगा. नहीं तो बीजेपी ने कहा है कि वो कास्ट सेंसस के खिलाफ है. आईपी सिंह जी, कहा है बीजेपी ने कास्ट सेंसस के खिलाफ है. नहीं, एक मिनट प्रणेश, बिल्कुल खिलाफ है. बिहार में क्या हुआ? बिहार बीजेपी जिस रास्ते पर गई है, जिस तरह से अदालतों में जाकर उस आरक्षण को फंसा दिया है. मैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की शुरुआत आपने करी, आरक्षण देने की बात आपने करी, वो हर गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की बात आपने करी. और मोदी जी जो तानाशाही देश से खत्म हो गई होती, उस तानाशाही को आपने 11वें साल में बढ़ा दिया. हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको होश आएगा. आज बीजेपी के साथ क्या हुआ? एक सांसद राज्यसभा का इस्तीफा देकर बीजेपी में गया. कल जेडीयू के सांसद जाने वाले हैं. परसों चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है उसके सांसद टूट कर जाएंगे. सबने देखा है कि आईपी सिंह जी, अब आईपी सिंह जी, मैंने आपको सुना. अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं. सांसदों को आईपी सिंह जी, नहीं, आईपी सिंह जी, एक सीधा सवाल पूछता हूं. देन आई एम ब्रिंगिंग यू, नो, आई एम ब्रिंगिंग इन तुषार. 1 मिनट. आईपी सिंह जी सुन लीजिए. देखिए, सुन लीजिए आईपी सिंह जी, सवाल सुनिए. राहुल गांधी ने मंत्रियों के कास्ट पूछ लिए, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पूछ लिए. संबित पात्रा तो कह रहे हैं उन्होंने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें उनका कास्ट पूछ लिया. लेकिन जब ये कमेंट सदन में होता है तो फिर एक तरह से टीम इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है कि जाति कैसे पूछ ली, कास्ट सेंसस कैसे करेंगे बिना जाति पूछे. बृहन लला है संबित पात्रा, भारतीय राजनीति का बृहन लला है. अरे उसकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते. आप छोड़ दीजिए, अब मत ध्यान दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए. ये क्या है आईपी सिंह जी? यू नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन. मोदी जी के चेहरे हैं, मोदी जी के चेहरे हैं. आप जवाब दे दीजिए ना, चेहरे को बेनकाब कर दीजिए. आप बताइए, बिना जाति पूछे कास्ट सेंसस कैसे करेंगे? जो लोग पीपल हु आर वाचिंग द डिबेट want to know, enlighten them. पात्रा की जाति बता दीजिए, अनुराग ठाकुर की जाति बता दीजिए. तो आप पूछ लीजिए उनसे. अब आप पूछ रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं अनुराग ठाकुर की. जात बता दीजिए. आप पूछ रहे हैं ना, अब आप खुद पूछ रहे हैं. महाजन की जात बता. तो आईपी सिंह जी, अब आप खुद पूछ रहे हैं ना. देखिए, आपने शुरू में क्या बोला, अब आप 2 क्वेश्चन में एक्सपोज हो गए. बीजेपी के आईपी सिंह जी, आप 2 क्वेश्चन में एक्सपोज हो गए. ये सब सवर्ण है. There you go, Tushar Gupta. और ये You see this selective outrage. That is the problem.
You know, Pranesh, all these spokespersons, all these supporters of the caste census blindly following the Rahul Gandhi rhetoric cannot tell us one utility of caste census in today's world. When people were given homes, did their caste matter? When they're given bank accounts, did their caste matter? In today's era of JAM and DBTs, do you really think caste has any utility in overall policy making? आपको आयुष्मान भारत का कार्ड मिलता है, आपको वो कार्ड मिलता है इलाज कराने के लिए, आपकी जात पे तो मिलता नहीं है। आपके घर के आगे सड़क बनती है आपके अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, उसमें आपकी जात तो नहीं देखी जाती। 11 लाख करोड़ का केपेक्स है, जब उसको इस साल खर्चा जाएगा, किसी की जात पूछ के खर्चा जाएगा। सो टेल मी Pranesh, what's this obsession with the opposition with the caste census? Because they want to divide up the Hindu vote. Ahead of all the state elections, all the general elections, the one coming up in 29, they want to divide the Hindu vote. And for the Congress, it's only important to divide that Hindu vote in 150 seats, take the alliance help in another 100 seats, and form a khichdi government. ये इनका long-term plan है. उसी रास्ते पर ये Lokesh, you want to answer that quickly before I bring in Nawal Kishore ji? Pradesh, Tushar gave a nice sermon, but Tushar, can you tell me why is there concentration of wealth in the hands of few? And if you are talking about the resources of the country, they have to be distributed equitably. The constitution requires us to do that. But when we talk about certain sections who are deprived, now please tell me on what basis are you going to identify them? The only means that is available to us is via caste. And if we have a socio-economic caste census, such groups which are deprived and which are marginal, they will be better identified, and affirmative action could be taken. Okay, let's have a quick response. To uplift them. Tushar, answer that. You know, Lokesh Jindal spoke about the equality here. Lokesh Jindal was a renowned teacher in Delhi. Can he tell me that when he looked at his classroom, could he identify the economic position of his students by their caste? Could he tell that this person is from this caste, so he'll be poor or he'll be rich, or she'll be poor or she'll be rich? He was a teacher in Delhi, right? He was teaching UPSC. He was earning a salary. How many students did he teach for free if he's so obsessed with equality? Let's have the hard questions today. No, that's not. No. Don't. Let's not get personal here. Nawal Kishore ji, जो बड़ा मुद्दा है, आपको हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो लोग 2 दिन से पूछ रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। मैं राहुल गांधी चक्रव्यूह की बात कर रहे थे। मैं बताता हूं आपको। और जी। नहीं, मैं बताता हूं, सुन लीजिए पहले। मैं बताता हूं कि क्यों हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आती है कि इसी मीडिया ने 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मेरिट पे डिबेट कर रहा था, लेकिन ईडब्ल्यूएस पे जब लागू हुआ रिजर्वेशन तो उसको कहीं मेरिट दिखाई नहीं दी। इस देश के शीर्ष संस्थाओं में जहां पर नियुक्ति होती है, केवल ओबीसी का जब अपॉइंटमेंट होता है उसमें एनएफएस होता है, जनरल में कभी नहीं होता है। आप क्या बात करते हैं? जो इतने दोहरे चरित्र के लोग हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उसका जनक है, आर्किटेक्ट है, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ डबल स्पीक। जातीय जनगणना की सवाल पूछिए तो प्रधानमंत्री कहते हैं देश में जाति ही नहीं है, नहीं गरीब है। एक मिनट, नवल किशोर जी, अब आप देखिए, टीम इंडिया, आप टीम इंडिया के मेंबर हैं। आपका ये सवाल, मैं बता रहा हूं आपको, आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन नवल किशोर जी सुन लीजिए। देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आपके जो एलाय है, सहयोगी दल हैं, आप कांग्रेस को पूछिए, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट करवा के रखा हुआ है, रिलीज नहीं कर रहे हैं, और बाकी जहां उनकी सरकार है, आप उनको बोलिए कि लेट्स सेट एन एग्जाम्पल, हम ही पहले कर देते हैं, इनको करके दिखा देते हैं। नहीं, ये आपको, आप तो पूछ ही रहे हैं ये सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन आपको इतनी हिम्मत नहीं है पूछने के लिए कि आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस की बात 2010 में कर रही थी, 2018-19 में आते आते यूटर्न कैसे ले लिया? यूटर्न क्या हो गया? करण वर्मा सेंसस के साथ आंसर ऑन यूटर्न देश में क्यों नहीं कराना चाहती है? You can't ask this question. I have just asked, Dr. Nawal Kishore ji, I just asked that question. बात करने दीजिए। अब वो जवाब दे रहे हैं, अब आप you will not listen to the answer. यही मीडिया, नहीं, सुन लीजिए। Now what is wrong with him यार? अरे मेरी बात सुनिए, आपकी बहुत देर सुन लिया, बात सुनिए। नहीं, प्रणेश, नवल किशोर जी हो या आईपी सिंह जी हो, ये किधर अपना गुस्सा फोड़ रहे हैं भाई? दे शुड आस्क द कांग्रेस, जिसने कर्नाटका में कर रखा है सेंसस।
They should break the alliance with Congress till it doesn't make it public. And is TMC in favor of a caste census? Saugat Roy has written an article in Indian Express saying we are against caste census. It will divide our society. TMC का ये कहना है. 2011 में भी यूपीए ने सेंसस किया. It did not make it public. अरे भाई बीजेपी is not against census. जिन्होंने किया है उनसे कहो पब्लिक करें. What is your commitment to census if you are not breaking your alliance with them? That means you are a hypocrite. बोलो ना अभी आईपी सिंह से बोलो आप दोनों मिलके break your alliance with Congress. आईपी सिंह जी जवाब है आपके पास. कर्नाटका census is not made public. सरकार जवाब दो इस बात का. काम करने वाली सरकार, सवर्णों के लिए काम करने वाली सरकार. देखिए क्या उनके नॉनसेंस. नहीं वो बोल रहे हैं कि आप अपने सहयोगी दल पे दबाव तो बनाइए. थिंग्स अगेंस्ट सवर्ण एंड ऑल दिस. बता दीजिए, फिर बता दीजिए. नहीं क्योंकि दिस इज दैट माइंडसेट. मिश्रा जी शर्म तो कीजिए. ये बिल्कुल ये क्या तरीका है? जी की बात Okay. माननीय अखिलेश Let's move on. Let's move on, gentlemen. I thank some of you for joining me on debate number 1. We'll have to move on.